Good morning to all. Myself Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. And in this video, we are going to discuss the JEE main and advanced level questions from the definite integral chapters. Okay. So far I know that from the definite integral chapter, the 3 lectures was given from this definite integral chapter regarding this JEE main and advanced exams. Okay. So in this video, we are going to discuss the various questions and various concepts as well. And this video it's maybe lengthy, but this video is very important for the advanced JEE advanced exams and for the mains exams as well. So just try to watch on the video fully. Okay, then I think from the definite integral chapter you will get the common questions in the entrance exams also. So it is very important lecture. Just try to concentrate in every words, in every concepts, in everything. Okay, so just before starting our journey, okay, just let me clear to everyone that please subscribe my channel, like and share. Okay, just if you like my videos, if you like my lectures, and if you are watching my channels as well, please subscribe my channel. Okay, just if you are subscribing my channel, then I am getting the motivation from your side, and I will get encouraged. Okay, for that, and in the nearest future I will upload this kind of videos if I am getting the motivation from your side. Okay, so I will continue these classes as well. Okay, so today just we are going to discuss the definite integral and the different questions from, because the exam is very close now. Okay, so just we are just solving the questions here. Okay, just after that who will repeat the exams JEE main advance in the next year. I will prepare the alpha level discussion, and the peak top-notch quality teaching will be provided to everyone. Just okay, just remember this word. And because of this lockdown, I have no book and I have no materials here. That's why just I'm collecting the different questions from the different previous year's question from JEE main and advance. Okay, and from the different book, from the PDF format. Okay, just I am trying to provide all the conveniences to my students so that you can get the success as well. Okay, so concentrate on the lectures as well. Each and every lectures are very important for the entrance level exams. Okay, this is the 4th lecture I think. Okay, so हम लोग आज जस्ट राइट JEE मेन के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, 0 to pi by 2 root 10x dx. Okay, 0 to pi by 2 root 10x dx. Very important question for the entrance studies. Okay, so I equals to this one, I equals to, okay. Now as you all know, 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx. This is the property actually. If the limit will be in the form like 0 to a, then this formation can be used as well. Just here you can see I equals to 0 to pi. That means in place of a, what is there? Pi by 2. Okay, so 0 to pi by 2 root 10 pi by 2 minus x. A minus x means what? Pi by 2 minus x. That means 0 to pi by 2 root cot x dx. It is here another I. So I plus I equals to 0 to pi by 2 root 10x plus root cot x dx. Okay, so here 2I equals to, let root 10x equals to z. That means 10x equals to z square. So sec square x dx equals to 2z dz. Can I take the substitution here? So here you can see z plus 1 by z. Root cot x means 1 by root 10x. So 1 by z. And in place of dx, what can I write? What can I write here? 2z dz by sec
square x. So 2I equals to, just we will consider the limit in this line. So z square plus 1 by z into 2z dz by sec square x means what? 1 plus 10 square x. 1 plus 10 square x. Okay. So okay. So 2I equals to this z cancelled. So z square plus 1. So 1 plus 10 square. Again, 1 plus 10 square means z to the power 4. That means z to the power 4 plus 1. है कि नहीं? और ये जो 2 ये 2 कैंसिल हो जाता है कि नहीं? तो दैट मीन्स dz ये यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर 2i नहीं i रहेगा सिर्फ। जितना हो सके उतना कैलकुलेशन कर लो। अब जो है हम लोग थोड़ा यहाँ पर चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर सपोज x इक्वल्स टू 0 हो तो z इक्वल्स टू क्या होगा? 10 0 मीन्स 0। x इक्वल्स टू अगर पाई बाई 2 हो 10, z इक्वल्स टू क्या होगा? 10 पाई बाई 2, दैट इज इंफिनिटी। Okay, so that means 0 to infinity. Okay, so now I equals to 0 to infinity z square अगर कॉमन ले, क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, अगर ऊपर जो है x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों टाइप का फॉर्मेशन अगर इंटीग्रेशन में हो तो न्यूमरेटर पार्ट को हम लोग को क्या करना है? a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में सजाना है। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए, इसके लिए क्या करते हो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना है? आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। ऐसा अगर एक्सप्रेशन रहे, रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट राइट दिस लाइन, इफ एनी इंटीग्रेशन is looking like this part, that means some quadratic formation will be there in the numerator and some biquadratic formation will be in the denominator part. Then you have to take x square as common from the numerator as well as from the denominator part. Okay, so here देखो यहाँ पर x नहीं z है, तो z स्क्वायर कॉमन लेना है। that means 1 plus 1 by z स्क्वायर, नीचे भी आपको z स्क्वायर कॉमन लेना है। that means क्या होता है? z स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर dz। ठीक है, so now z स्क्वायर कॉमन कैंसिल, सॉरी 0 to infinity 1 plus 1 by z square, and here a square plus b square, a square plus b square. Do you know the formula? A plus b whole square minus 2ab, or a minus b whole square plus 2ab. Two formulas are there. So which formula is going to be used here in the denominator? Because a square plus b square, two formulas are there. So which formula should I use here? Just you have to see the numerator part. Just remember this thing, just concentrate on my lectures as well. Okay, so if you have the plus sign in the middle in the numerator part, plus sign in the middle in the numerator part, then you have to use this formula. This formula माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको यूज करना है। अगर यहाँ पर मिडल में 1 minus 1 by z स्क्वायर होता तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। सो यहाँ पर देखो z minus 1 by z होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड इंटू 1 by z। ठीक है, dz तो यहाँ पर है। सो 0 to infinity, अब जो है यहाँ पर z minus 1 by z को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 1 माइनस 1 by z का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 by z स्क्वायर। ठीक है, और dz इक्वल्स टू dt, 1 प्लस 1 by z स्क्वायर dz इक्वल्स टू dp। आ गया ना, देखो आ गया ना। सो दैट मीन्स dp बाई t स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल √2 होल स्क्वायर हो गया, √2 होल स्क्वायर। नाउ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? 1 by a tan इनवर्स x by a, ये होता है ना फॉर्मूला। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? 1 by a tan इनवर्स x by a, x by a मीन्स p by √2, और लिमिट जो है हम लोगों ने तो यहाँ पर चेंज नहीं किया, छोड़ो हम लोग बाद में चेंज करेंगे 0 to infinity।
यहाँ पर तो t में सब्स्टिट्यूट कर दिया था ना, तो चेंज करना पड़ता, तो हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर 1/√2 tan inverse infinity minus 1/√2 tan inverse 0. Okay, so infinity means what? 10 pi by 2 है कि नहीं? So that means 10 pi by 2 और tan inverse 10 cancel, तो pi by 2√2 और इधर 1/√2 tan 0 तो 0, तो that means I equals to क्या आ रहा है आंसर? pi by 2√2, pi by 2√2. And in the multiple choice questions this option will be given, just you have to figure out the answer here and just you have to take the answer. Okay, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, ये थोड़ा याद रखना है, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला है वो आप लोगों को ठीक तरह से क्या करना है, आपको नोट करके रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद -π/4 to π/4 log sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx, ये होता है क्वेश्चन। 4 to π/4 log sin x प्लस cos x dx। तो यहाँ पर एक काम देखो, यहाँ पर एक साइड में लिखो, अगर यहाँ पर -a to a फॉर्मेशन में कोई भी लिमिट दिया जाता है, ठीक है, तब आप लोगों को पहले फर्स्ट चेक करना है जो फंक्शन है वो क्या ऑड फंक्शन होता है या फिर इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन कब होता है, देखो तो यहाँ पर f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ fx हो जाए तो ये ऑड होता है। अब f ऑफ -x अगर यहाँ पर f ऑफ x हो जाए तो वो इवन होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो, किसी भी फंक्शन में अगर कोई भी लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन रहे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन रहे या फिर कभी वेरिएबल अगर पावर में रहे, तो दिस फंक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड वेदर इट इज ऑड और इवन। सो एट दैट टाइम वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट इज 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of -x dx। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। जब आप लोग को ये ऑड और इवन जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑड होगा या फिर इवन होगा, तब आप लोगों को जो है ये चीज देखना है, ठीक है। सो अब आओ, तो यहां पर देखो, ये कंडीशन अगर यहां पर यूज करें, I इक्वल्स टू 0 to π/4 लॉग, यहाँ पर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जो है ये ऑर्डर इवन वाला केस जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जनरली, प्लस 0 to π/4 लॉग साइन -x प्लस कॉस -x, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट dx I इक्वल्स टू 0 to π/4 log तो यहां पर हो गया देखो cos x प्लस sin x, पहला वाला तो ठीक है, फिर dx प्लस 0 to π/4 log, अब साइन में जब नेगेटिव एंगल होता है वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है कि नहीं, है। तो दैट मीन्स यहां पर अगर हम लोग ऐसे लिखे और cos के अंदर अगर नेगेटिव साइन रहे तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट मीन्स cos x माइनस sin x, है कि नहीं। अब देखो 0 to π/4 log a प्लस log b, log a प्लस log b इक्वल्स टू क्या होता है, log ab होता है ना। तो दैट मीन्स यहां पर देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, log cos x प्लस sin x, then in another bracket cos x minus sin x, ऐसे कर सकते हैं। so that means यहां पर कैसे लिख सकते हैं आप, देखो 0 to I equals to 0 to π/4 log, देखो तो a plus b into a minus b केस आ रहा है कि नहीं, cos square x minus sin square x, there is a square minus b square, so I equals to 0 to π/4 log, ये जो पार्ट है वो cos
ट्वाइस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, कॉस ट्वाइस एक्स, है कि नहीं। सो अब तो यहां पर देखो 0 to पाई बाई 4 क्या आ गया, कॉस ट्वाइस एक्स आ गया। अब आओ लेट ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्यों कर रहे हैं पता चलेगा अभी। देखो यहाँ पर dx इक्वल्स टू dz बाई 2, और यहाँ पर ये जो है x इक्वल्स टू अगर 0 हो z इक्वल्स टू भी 0, x इक्वल्स टू अगर यहाँ पर पाई बाई 4 हो z इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 2। तो दैट मीन्स I इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4, नॉट पाई बाई 4, पाई बाई 2 log cos z dz by 2. It means I equals to half 0 to पाई बाई 2 log cos z के जगह हम लोग जो है x dx भी लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे थर्ड ब्रैकेट ना देके ये फर्स्ट ब्रैकेट में रखो, अच्छा होगा। थर्ड ब्रैकेट भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करता है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट दे दो हर जगह, इट विल बी बेटर। ओके, नाउ कैसे हम लोग करते हैं, सपोज देखो 2 to 4 ऐसे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 2 to 4। लिमिट थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 1 to 3 1 to 3 1 to 3, तो दैट मीन्स ये होगा क्या, 3 क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 है, तो 26 बाई 3 आंसर है। सेम टू सेम अगर 1 to 3 z स्क्वायर dz हो, इसका भी तो आंसर देखो 26 बाई 3 ही आएगा। दैट मीन्स एक ही लिमिट अगर हो, सेम लिमिट अगर हो, तो वेरिएबल को हम लोग ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट में नहीं, याद रखना। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग ऐसे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद जो है आप लोग जो है कम से कम एक वन पेज स्पेस रखें, वन पेज जो है वो स्पेस रखें, हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है, लंबा होगा। तो यहां पर देखो, तो आई क्या निकला, ये निकला, है कि नहीं। अब हम लोग न्यू स्टार्ट करते हैं। हियर आई इक्वल्स टू क्या निकला, हाफ 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है उसको I1 नाम दे देते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। I1 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। अलग से हम लोग जो है इस पार्ट का जो है कैलकुलेशन निकालेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन भी होता है, इससे जो है यहां से दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। यहां से अलग से क्वेश्चन भी होता है, तो यहां से जस्ट देखो प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर से तुम थर्ड क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसका ही जो आंसर है वो सेकंड क्वेश्चन में लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से एक नया क्वेश्चन ये लिख लो, ये ऐसा क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अब जो है 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी होता है। अब दैट मीन्स 0 to a log cos पाई बाई 2 माइनस x होता है कि नहीं। तो देखते हैं 0 to पाई बाई 2 आई थिंक log sin x dx, ये अनदर I1 होता है। So I1 plus I1 0 to पाई बाई 2 log cos x plus log sin x, पूरा ब्रैकेट देके dx। So 2I1 equals to 0 to पाई बाई 2 log a plus log b, log ab लिख सकते हैं ना, देखो log ab ऐसे लिख सकते हैं ना, log ab देखो तो है, लिख सकते हैं ना। अब जो है आओ नेक्स्ट 2I1 इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log, देखो sin x प्लस cos x है, sin x इंटू cos x। तो sin x इंटू cos x रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आप लोग को पता है,
देखो तो ऐसे अगर यहाँ पर 1 2 ये यूज कर सकते हैं। देखो तो 2 sin x cos x मतलब क्या होता है, sin twice x by 2 है गई dx। So that is 2i1 equals to 0 to pi by 2 log sin twice x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx, क्योंकि log a by b इसका मतलब क्या है, log a माइनस log b। हम लोगों ने लिमिट को भी पार्ट कर दिया। So 2i1 equals to 0 to pi by 2 log sin twice x dx माइनस ये log तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x इंटीग्रेशन dx मतलब क्या होता है, x होता है 0 to pi by 2 होता है कि नहीं। So that means 2i1 equals to 0 to pi by 2 log sin twice x dx minus pi by 2 log 2 pi by 2 log 2। यहां पर आके फिर एक यहां पर इस जगह में देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको एक काम करो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 2 हियर 0 to pi by 2 log sin twice x dx, इसको हम लोग I2 नाम दे देते हैं, ठीक है। I2 equals to, so I2 equals to 0 to pi by 2 twice x को हम लोग z सब्स्टिट्यूट करते हैं, dx equals to dz by 2। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया, x इक्वल्स टू जब 0 हो z इक्वल्स टू 0 होगा, और x इक्वल्स टू अगर पाई बाई 2 हो z इक्वल्स टू क्या होगा, पाई। दैट मीन्स 0 टू पाई log sin z dz by 2। दैट मीन्स I2 इक्वल्स टू हाफ 0 टू पाई log sin z dz, उसको हम लोग sin x dx भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। सो I2 इक्वल्स टू हाफ। अब जो है हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करना है, वो प्रॉपर्टी जो है वो लिखो प्रॉपर्टी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद 0 टू ट्वाइस ए ये प्रॉपर्टी है, नोट करके लिखो। 0 टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 into 0 to a f of twice a minus x dx, ऐसे लिख सकते हैं। कब, जब f of x और f of twice a minus x जब इक्वल होगा। तो यहां पर देखो तो ये twice a फॉर्मेशन, ये पाई है, पाई को हम लोग अगर 2 into पाई बाई 2 लिखे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। log sin x dx है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर हाफ 0 टू ट्वाइस ए, ट्वाइस से मतलब क्या है, पाई, तो log sin x ये fx है। सो ट्वाइस ए माइनस एक्स क्या होगा, ट्वाइस से मतलब क्या है, पाई, तो पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स से रहता है ना, तो दैट मीन्स log sin x fx है। ये f ऑफ ट्वाइस से माइनस एक्स, उसका आंसर भी क्या है, log sin x से आ रहा है, दैट मीन्स इक्वली आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी है। सो दैट मीन्स हाफ फिर 2 into 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक है, हो गया। अब यहां पर देखो ये कैंसिल, तो ये हो गया, देखो I2 इक्वल्स टू I1, ये I1 है ना, देखो ये जो है ये I1 है ना, हाँ I1 था ना, ये ठीक है नहीं, लिख सकते ना I1। देखो तो वो I1 इक्वल्स टू log cos x, फिर उसके बाद देखो अनदर I1 लिखा था ना उसमें, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को I1 हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये तो 2 और 2 कैंसिल, I2 और I1 जो है वो इक्वल हो गया है? होने के बाद I2 का वैल्यू कहां से आ गया, इक्वल्स टू I1 के साथ इक्वल आ गया। दैट मीन्स I2 हम लोगों ने किसको लिया था, ये है तुम लोगों का I2 है कि नहीं। तो दैट मीन्स फ्रॉम 2I1 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू I2 लिया था ना, देखो इसको, ये देखो I2
है, I2 का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, I1 के साथ, मीन्स I1 माइनस पाई बाई 2 log 2, इट मीन्स I1 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये किसका वैल्यू आया, I1 का वैल्यू आया। नाउ I1 का वैल्यू कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, I इक्वल्स टू हाफ इंटू 0 टू पाई बाई 2 log cosx dx, ये हम लोग का क्या था, I1 था, है कि नहीं। तो I1 का वैल्यू क्या निकला, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो I1 का वैल्यू कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये बिठा दो, यही तो I1 था ना, है, इसको तो हम लोगों ने I1 लिया था, देखो सब कुछ लिखा हुआ है। सो I इक्वल्स टू हाफ इंटू, इसका आंसर क्या आया, माइनस पाई बाई 2 log 2। दैट मीन्स I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 log 2। ये होता है फाइनल आंसर, ये होता है आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन कवर हो गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन कवर हो गए एक साथ, है। तो ये दूसरा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग जो है यहाँ पर तीसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है cot इनवर्स x, इसका मतलब है tan इनवर्स 1 बाई एक्स, क्योंकि tan फंक्शन और cot फंक्शन जो है रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, तो इसलिए हम लोग जो है ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो दैट इज ये I इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिख सकते हैं ऐसे। सो दैट मीन्स 0 to 1 tan इनवर्स, देखो यहां पर 1 माइनस एक्स अगर कॉमन ले, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे। सो अभी न्यूमरेटर में क्या है, 1 है ना, उसको देखो तो ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, अल्टीमेटली तो 1 ही रहता है। क्यों हम लोगों ने ऐसा लिखा है, क्योंकि हम लोग के पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पर। दैट मीन्स 0 to 1 tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, देखो देख सकते हैं। अब दैट मीन्स यहाँ पर I इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, देख सकते हैं ऐसा है। अब जो है नेक्स्ट I इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस, ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें अगर मैं वो वाला प्रॉपर्टी यूज करूं, f ऑफ x 0 to a f ऑफ x dx 0 to a f of a minus x dx, that means tan इनवर्स a minus x, that is 1 minus x, एग्री। x के जगह क्या पुट करना है, 1 minus x पुट करना है, that is 1 minus x के जगह 1 minus x पुट करना है dx। ये साइड में ये लिख लो, सिंस ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया है। सो I इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1, यहाँ पर 1 1 कैंसिल, देखो यहाँ पर भी tan इनवर्स x dx आ रहा है, देखो दैट मीन्स दोनों ऐड होके I इक्वल्स टू 0 to 1 2 tan इनवर्स x dx आ रहा है ऐसा।
ऐसा आ रहा है। सो आई इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, u इंटू भी फॉर्मूला यूज कर दो, u इंटू भी फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा u इंटू भी करके, है कि नहीं। तो दैट मीन्स i इक्वल्स टू 2 0 to 1, ये होता है tan इनवर्स x u एंड 1 होता है v। जस्ट u भी फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर जो है वो आ जाएगा इजीली, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट एक हेडिंग दो, मॉड्यूलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर function, very important type for JEE main and advanced level exams. Okay, so modulus function and ये हो सकता है ना, ये तो इजी है, फिर उसके बाद लिमिट बिठा दोगे, बहुत इजी होता है। मॉड्यूलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x, ठीक है। mod x से क्या क्या प्रॉपर्टी निकलता है, दो प्रॉपर्टी निकलता है। एक प्लस x जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस x जब x लेस देन 0 होता है। दैट मीन्स जहां पर भी तुम्हें mod दिखाई दे, तब तुम्हें यहां पर दो केसेस कंसिडर करना पड़ेगा, एक केस लेस देन वाला केस और अनदर केस ग्रेटर देन वाला केस, ठीक है। दैट मीन्स सपोज आपके पास यहाँ पर लेट mod ऑफ x माइनस 1 है, तो उसका आंसर प्लस x माइनस 1 होगा। कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। 1 से ग्रेटर पुट करो, 2 3 4 देखो पॉजिटिव ही आएगा। अब माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा कब, जब x लेस देन 1 होगा। सो दैट मीन्स हर जगह देखो मॉड्यूलस फंक्शन यूज किया है। दैट मीन्स आपको दो चीज जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक है लेस देन पार्ट और दूसरा है ग्रेटर देन पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है f(x) इक्वल्स टू सपोज क्या दिया हुआ है, बॉक्स ऑफ x दिया हुआ है। अब बॉक्स ऑफ x, ये बॉक्स यूज करने का मतलब ये होता है, अब बॉक्स के अंदर कुछ भी डेसिमल वैल्यू तुम पुट करो, वो बॉक्स क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। जैसे सपोज ये बॉक्स ऑफ x का वैल्यू ऑलवेज लेस इक्वल्स टू x होता है, या फिर x के साथ इक्वल या फिर छोटा। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू मैंने 1.75 लिया। अब बॉक्स ऑफ 1.75 आपको देखना है कि 1.75 कौन से दो इंटीजर के बीच लाई करता है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसका होगा आंसर 1। जो स्मॉलेस्ट होगा, दो इंटीजर के बीच जो स्मॉलर होगा वो होगा उसका आंसर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये 2 आंसर होता है। दैट मीन्स यहां पर देखो 1 होता है ना आंसर, तो 1 देखो ये क्या है 1, x का वैल्यू 1.75 था, आंसर क्या निकला 1 निकला, तो ये 1.75 से छोटा नहीं है क्या, इसलिए फ्रॉम दिस डेफिनेशन लेस इक्वल्स टू, दैट मीन्स बॉक्स ऑफ x का आंसर जो है x जो तुमने चूज किया उससे छोटा ही होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर देखो आंसर क्या है, बॉक्स ऑफ x का आंसर 1 है, वो x का वैल्यू क्या चूज किया था 1.75, 1.75 से 1 छोटा नहीं होता है, छोटा होता है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब सपोज एक क्वेश्चन आपको हम लोग ऐसे अगर दे, ऐसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सपोज फाइंड 0 to 1, ठीक है, mod 5x माइनस 3 dx, इसका जो है आंसर निकाल के दिखाइए। फाइव एक्स माइनस 3, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है क्या है 5x माइनस 3। मनी मन हम लोग क्या करेंगे, 5x माइनस 3 को इक्वल 0 लिखेंगे, वहां से x का वैल्यू क्या निकलता है 3/5 निकल रहा है कि नहीं।
अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो भी वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू में हम लोग जो है गिवन जो इंटीग्रेशन है, जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 to 1, 0 to 1 इंटरवल को तोड़ के दो पार्ट करेंगे। बीच में कौन आएगा, देखो अभी यहां पर 0 to 3/5 5x minus 3 dx plus 3/5 to 1 mod of 5x minus 3 dx। देखो टोटल इंटरवल को हम लोगों ने दो पार्ट कर दिया, बीच में कौन घुस गया 3/5 घुस गया, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया। 3/5 आने से क्या होता है, दो केसेस जो है वो अराइज हो जाता है। अब दो केसेस कैसे अराइज हो सकता है, जैसे देखो 3/5 आ गया, अब 3/5 से छोटा एक केस आएगा, 3/5 से ग्रेटर एक केस आएगा। कैसे आएगा, देखो यहां पर है ये फंक्शन मोड ऑफ 5x minus 3, ये नोट देके लिखो, है नोट देके लिखो 5x mod of 5x minus 3 mod of 5x minus 3, उसका आंसर प्लस 5x minus 3 आएगा जब x का वैल्यू किससे ग्रेटर होगा 3/5 से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 3/5 है, और माइनस ऑफ 5x minus 3 होगा जब x का वैल्यू 3/5 से छोटा होगा। ये दो केसेस ही तो अराइज होता है ना, 3/5 से ग्रेटर, 3/5 से छोटा। जब ग्रेटर होता है तब प्लस साइन आता है, और जब स्मॉलर होता है वो माइनस साइन आता है। दैट मीन्स यहां पर देखो ये दो केसेस के लिए 3/5 से ग्रेटर, 3/5 से छोटा, ये दो केसेस लेने के लिए हम लोगों ने इंटरवल को जो है टोटल 0 to 1 इंटरवल को तोड़ के दो पार्ट कर दिया, बीच में घुसा दिया किसको 3/5 को। यहां पर देखो 3/5, ये 3/5 से छोटा वाला केस देखो तो 0 to 3/5, तो यहां पर जो जो वैल्यूज होगा वो 3/5 से छोटा नहीं होगा क्या, छोटा होगा ना, तो ये केस आ गया। और यहां पर देखो, यहां पर जो जो वैल्यूज होगा वो 3/5 से ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, तो दैट मींस यहां पर ग्रेटर वाला केस भी आ गया। सो देखो यहां पर 0 to 3/5, तो यहां पर 3/5 से छोटा वाला केस, दैट मींस इसका आंसर जो है 3/5 से अगर छोटा हो क्या होता है माइनस ऑफ 5x minus 3 नहीं होता है क्या, माइनस ऑफ 5x minus 3 dx है कि नहीं, प्लस सेकंड वाला जो है वो देखो 3/5 से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ग्रेटर, ग्रेटर में 3/5 से ग्रेटर में क्या होता है प्लस 5x minus 3 dx। अब जो है तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, अब तो तुम नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर क्या है 5x² 2 minus 3x 0 to 3/5 और प्लस 5x² 2 minus 3x 3/5 to 1। बस भी कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर, x की जगह वैल्यू बिठा दो, आराम से आ जाएगा आंसर, है कि नहीं, वैल्यू बिठा दो आ जाएगा, x की जगह यहाँ पर वैल्यू बिठाने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये है 0 to 2 box of x dx। very interesting question, very important also, very important, okay, and very conceptual also, and these box related questions are very tough also, so just remember this thing, okay। तो यहाँ पर है सॉरी ये x² है, x² x मोर बॉक्स ऑफ x होने से तो एकदम इजी है, बॉक्स ऑफ x², ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, फर्स्ट लोएस्ट क्या है, ये तो x का लिमिट है ना 0 to 2 है, तो x का वैल्यू अगर 0 हो, x² का वैल्यू क्या आता है, बॉक्स के अंदर जो x² है उसका आंसर निकाल के देखते हैं क्या होता है। x² का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, वेरी गुड। अब x का वैल्यू अगर सपोज 2 चूज करते हैं, x² का वैल्यू क्या होता है 4 आता है कि नहीं, तो दैट मीन्स x का वैल्यू 0 के लिए x² का वैल्यू 0 आता है, x का वैल्यू 2 के लिए x² का वैल्यू 4 आता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो बॉक्स यूज करने का मतलब क्या होता है, बॉक्स के अंदर x² का जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, करने के बाद क्या होगा, बॉक्स क्या करेगा नियरेस्ट इंटीजर को जो है वो ढूंढ के आंसर निकाल देगा, है कि नहीं। अब जो है देखो x² का वैल्यू 0, x² का वैल्यू 4, बीच में जो और भी इंटीजर्स है ना, जैसे 1 होता है, 1 2 3 1 2 3 ये सब वैल्यूज होता है ना, है
एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है? क्योंकि ये जो इंटरवल दिया गया है ना 0 to 2, इसका मतलब है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। इसका मतलब ये नहीं कि 0 और 2 दोनों बिठा दिया आंसर खत्म, ऐसा नहीं होता है। 0 बिठाओगे, फिर 0 के बाद दूसरा नंबर, उसके बाद ऐसा 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 करते 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 2 में जाके खत्म होगा। तो ऐसा भी तो x का कुछ वैल्यूज यहाँ पर हो सकता है जिसके लिए एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 आ सकता है। 0 और 2 के बीच x का ऐसा भी तो कुछ वैल्यू हो सकता है ना जिसके लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ सकता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आ सकता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट हाईएस्ट लिमिट में 0 और 4 आंसर आ रहा है। और बीच में जो इंटीजर्स हैं उसका क्या करें, उसके लिए देखो हियर बीच में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 हो, एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू 1 निकलता है। देखो दैट मींस एक्स का वैल्यू जब 1 हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू की 2, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, √2। दैट मींस एक्स का वैल्यू जब हम लोग √2 चूज करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2 आएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3, दैट मींस एक्स का वैल्यू √3। सो दैट मींस यहां पर देखो 0 और 2 के बीच ये जो वैल्यूज है ना 1, √2, √3, ये सब वैल्यूज भी तो लाई करता है। जैसे 1, √2 का आंसर क्या होता है 1.41 ऐसा कुछ, √3 का आंसर क्या होता है 1.73। तो ये सब 0 और 2 के बीच लाई नहीं करता क्या, ये सब वैल्यूज भी तो लाई करता है। तो ये सब वैल्यूज के लिए भी तो एक्स स्क्वायर का कुछ वैल्यूज मिलेगा, है कि नहीं? तो वो भी तो चेक करना है आप लोगों को। तो यहां पर देखो एक्स का वैल्यू 1 के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 निकल रहा है, वेरी गुड। एक्स का वैल्यू √2 के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 निकल रहा है, एक्स का वैल्यू √3 के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 निकल रहा है। तो यहाँ पर जो ये इंटरवल 0 to 2 दिया गया है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ के क्या लिखेंगे, देखो अभी 0 to 2 है ना, तो 0 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 0 to इमीडिएट कौन सा है 1, देखो एक्स का वैल्यू 1, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से लेके कहां तक जाएंगे √2, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx। फिर √2 से लेके कहां तक जाएंगे √3, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx। फिर √3 से लेके कहां तक जाएंगे, बस 2, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx, है कि नहीं? अब जो है हो गया। फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ये जब बॉक्स का फंक्शन ये बड़ा दिया जाएगा ना, ये एंट्रेंस पे क्या करते हैं बड़ा दे देते हैं, हम लोग वो भी करेंगे। बेसिक लेवल का ये समझना पड़ेगा, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर देखो इस इंटरवल में एक्स का वैल्यू जब 0 और 1 हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलता है, एक्स का वैल्यू जब 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0 होता है। एक्स का वैल्यू जब 1 होता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 निकल रहा है, 1 निकल रहा है। लोएस्ट कौन सा होता है, लोएस्ट इंटीजर कौन सा होता है, 0 होता है ना। जब तुम एक्स स्क्वायर के ऊपर ये बॉक्स यूज कर दोगे, वो बॉक्स क्या करेगा, नियरेस्ट जो छोटा इंटीजर होगा उसको कलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स ये लोएस्ट लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। एक्स का वैल्यू जब 1 हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच लाई करता है। तो जब एक्स स्क्वायर के ऊपर तुम बॉक्स यूज कर दोगे तो ये बॉक्स क्या करेगा, नियरेस्ट जो स्मॉलर इंटीजर है उसको कलेक्ट करके आंसर निकाल देगा, आंसर इज 0, ठीक है ना। तो दैट इज बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में 0 to 1 इंटरवल में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है 0 होता है। तो लेट मी 0 into dx, नथिंग, 0 to 1 0 into dx लिख दो, जरूरत नहीं है आप, ठीक है। सेकंड में आओ, सेकंड में देखो एक्स का लोएस्ट वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब एक्स इक्वल्स टू √2, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 होगा। दैट मींस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से लेके 1 में लाई करता है। अब जब तुम ये बार बॉक्स यूज कर दोगे तो बॉक्स क्या करेगा, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर को ढूंढेगा।
नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर क्या है, 1 होगा। तो दैट मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर इस इंटरवल में क्या होता है, 1 होता है। एज इट इज √2 to √3 उसमें क्या आएगा, सेम यहां पर देखो, √2 के लिए ये 2 आएगा, ये √3 के लिए ये 3 आएगा। दैट मीन्स ये 3 ये 2, नियरेस्ट कौन सा होगा, 2 होगा। 2dx प्लस √3 to 2 उसमें क्या होगा, 3dx आएगा, ऐसे करके। सो बस अभी तो ये तो पार्ट पूरा ही जीरो। यहां पर ये x 1 √2 प्लस 2 into x √2 √3 प्लस 3 √x √3 2। तो √2 minus 1, 2 into √3 minus √2 प्लस 3 into 2 minus √3। बस अभी ये मल्टीप्लाई करके √2 minus 1, 2 √3 minus 2 √2 प्लस 6 minus 3 √3। अगर प्लस माइनस करके क्या आंसर निकल जाता है देख लो। यहाँ पर देखो √2 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 √3 minus 3 √3 और 6 minus 1 that is 5 minus √3 minus √2, ये होता है आंसर। 5 minus √3 minus √2, ठीक है। तो ये होता है बॉक्स का क्वेश्चन जो है वो सब सॉल्व जो करने का तरीका है वो, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इस लेवल के इस टाइप का ही क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो बहुत सारा होता है, ठीक है। एक वीडियो में ये सब हर चीज कवर नहीं कर पाएंगे तो ये लंबा हो जाए, 3-4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जस्ट यहाँ तक स्टॉप रहो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ये इस टाइप का जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रहा है, लेक्चर्स पसंद आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, ठीक है, सबके साथ, ठीक है। सो जस्ट टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम हियर एंड जस्ट solve everything, and because the exam is coming very soon, so now don't waste your time now, just very small amount of time is left now, okay. So be healthy and be safe. Bye. Jai Hind.